Hello and welcome to JV's IAS YouTube channel. My name is Rishabh Arora and I am the faculty for social issues and internal security at JV's IAS. In this video, I am going to discuss the free fall of the rupee. Now we have come up with the series called Burning Issues, where I am going to and other teachers are also going to discuss the burning issues for UPSC mains and their prelims examination in such manner that no topic which is relevant and significant from the prelims or main syllabus will not be left, right? So we have seen that the rupee has recently marked a significant lower against the dollar. So why rupee is falling and what are the causes of fall of the rupee and what is the repercussion if the rupee falls, how it is going to impact the importers, how it is going to impact the balance sheet of our country. So let's see. Since we have seen that the Indian rupee hit an all-time low against the US dollar this week, weakening past 79 rupee. Earlier what we have seen that if we are giving 70 rupees, we are getting $1, right? If we are giving 70 rupees, then we are getting $1. So what you need to understand here, if we need to give more rupees in order to buy a dollar, if we need to give more rupees to buy a dollar, इट मीन्स रुपए की वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की पड़ रही है. पहले हमें $1 70 में मिलता था, लेकिन अब वही $1 हमें 80 रुपए में मिलता है. इसका मतलब रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया, फीका पड़ गया. अब रीज़न जो है वो एक कभी नहीं होता कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर क्यों हो रहा है. इसके मल्टीपल रीज़न जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. लेकिन सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि रुपी जो है वो यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है और एप्रीशिएट कौन हो रहा है, डॉलर, क्योंकि डॉलर की वैल्यू रुपी के अगेंस्ट बढ़ रही है. पहले एक फॉरेनर इंडिया में सपोज ₹1 की एक टॉफी मिलती है, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 कैंडी. नाउ दिस फॉरेनर विल कम and will exchange $1. Earlier he was getting 70 rupees when he was giving us $1. Now he will get 80 rupees when he is giving $1. Now he will get 80 candy. Earlier he was getting only 70 candy. It means it is beneficial for foreigners and it is not good for those people who want to import from outside countries. Now for dollar is appreciated and rupee is depreciated. Whenever it is going and whenever it is happening because of the market economy, we use the term depreciate. And when the central government or the central bank of the country voluntarily decreases the price of their currency, then we say devaluation. So Indian currency was not devaluated this time, rather it was depreciated because it is all happening in the market, and market में supply and demand is determining everything. Now this is how we have seen that how rupee has moved forward according to the geopolitical tensions here. Now what you need to understand that what is the reason for this free fall in the rupee. Free fall in the rupee means that the rupee is not stopping in falling. आप गिर रहे हो तो गिरते जा रहे हो, आप एक बार भी रुके नहीं हो. अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि how the increase in the Fed rates. Fed means we are talking about Fed means Fed Reserve, and Fed Reserve means the Central Bank of the America. Now this Central Bank of America has increased the rates. It means if I have to borrow money
from the American bank, the money is getting costlier. It means the interest rate in the America has relatively increased from the past. Earlier, you were getting only 2% interest rates in saving accounts, but now you are getting around 4% saving interest rate in your bank account. तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट अब ज़्यादा मिल रहा है अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालने के बाद, तो आप इंडिया में पैसे क्यों लगाओगे? नाउ यू विल सी कि इससे इंडिया से क्या मतलब है. प्रॉब्लम ये है कि मैनी अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडियन एक्विटीज और वी कैन से इंडियन स्टॉक मार्केट. व्हेन दे आर गेटिंग मोर मनी फ्रॉम देयर ओन कंट्री, why would they invest their money in another country or a developing country like India? So they will take their money out from the India. So in July itself, foreign portfolio investors have sold the equity worth 2 lakh crore rupees. मतलब 2 लाख करोड़ रुपया, अगर मैं हिंदी में बात इंग्लिश में बोलूं तो 2 ट्रिलियन रुपीज, 2 trillion rupees were taken out by the foreigners itself. तो मतलब इन 2 लाख करोड़ को आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे और इसके बाद इसको पैसे को लेके जाओगे. मतलब आरबीआई से 2 लाख करोड़ रुपए के डॉलर यहाँ पर लेकर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स गए हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉलर का आउटफ्लो इतना ज़्यादा है कि डॉलर का इनफ्लो इतना था ही नहीं. तो इस वजह से डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. देन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. और ये इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड. और सबसे बड़ा जो डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिला है वो मिला है 2 ब्लैक स्वान इवेंट्स की वजह से. द फर्स्ट इज कोविड-19 पैंडेमिक एंड द सेकेंड इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. इन 2 ब्लैक स्वान इवेंट के होने की वजह से हमें क्या देखने को मिला है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पीस है, वो डिस्टर्ब हो गया है और कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो गया है. देन क्रूड ऑयल में हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है. जो क्रूड ऑयल $50 पर बैरल था वो $120 पर बैरल तक गया है. तो विच हैज़ क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन. तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डॉलर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब आप इसको समझने की कोशिश करो. पहले क्रूड ऑयल का प्राइस था $60 पर बैरल. अब यही एक बैरल $120 का हो गया. नाउ द प्रॉब्लम इज इफ अ कंट्रीज डिमांड इज 1 मिलियन बैरल, 1 मिलियन बैरल, right? The demand will be relatively same because a country needs oil. We need oil for running our vehicle. But the price of the crude oil has increased from 60 to 120. It means it has increased by 100%. The demand for dollar will increase because earlier I needed only $60, but now I need $120. So I will run and go to the currency bank and will say give me more dollar and I will give my currency whatever it is, be it Nepalese रुपया, इंडियन रुपया या फिर आप कोई भी यूरो. तो आप डॉलर की डिमांड यहाँ पर बढ़ती जा रही है और डॉलर की डिमांड बढ़ने के बाद इंडियन रुपी की डिमांड घटती जा रही है. तो यहाँ पर क्योंकि सब लोग इंडिया से निकल रहे हैं तो देयर इज आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स. व्हाट वी हैव सीन, if the demand of the dollar is more and the supply is less, then the price or the price of the dollar will increase. तो डॉलर अप्रिशिएट होगा. ये चीज़ हमें देखने को मिली. तो सबसे बड़े 3 रीजंस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं. बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्वान इवेंट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से. आप सब लोगों को पता है कि अगर if you want to buy milk or if you want to buy vegetables, we can buy these things from normal grocery store or confectionery store. But these commodities are transported from the village area to the interiors of the city.
Now because of the crude oil price has increased, it means the petrol price has increased, the cost of transportation also increases. Now when the cost of the transportation will increase, the price of the goods will also increase, which will result into the inflation. And inflation means general rise in the price of the goods and services, right? Now, what do you need to understand? That how fall in the rupee is going to impact you, or how it is going to impact the overall economy. Repercussion means the after effect or the impact. Now, first of all, costly import. Earlier, suppose I was buying a machine which was worth $100. Now, $100 means 7,000 rupees. Now, the same dollar is for 80 रुपीज़, तो अब वो 8,000 का हो जाएगा, क्योंकि $100 multiplied by 70 is equal to 7,000. But the same $100, if I multiply it by 80, it will become 8,000. So the import will be expensive. Then decrease in forex reserves. I need to spend more dollars to buy. And it will also remain to outflow of FPI. When there will be more and more outflow of foreign portfolio investors, what you will see here, you will see that forex reserve will decrease. Increase in subsidy bill, we can say oil and fertilizer. Now the government buys fertilizer from Vietnam, from Bangladesh, from many other countries. Now the government gives almost 40 to 60% subsidy on fertilizers and around 10 to 15% on oil. The government gives subsidy. So the government's bill is going to increase because the price of the dollar has appreciated. Export is going to get cheaper. Why? In $1, the foreigner was getting only 70 candy, but now the same foreigner is getting 80 candies. He will say, tomorrow the rupee might appreciate, so why not buy more now? तो आज ज़्यादा खरीद लेता हूँ. जनरली जब 1 के साथ 1 फ्री मिलता है किसी मॉल में, तो जनरली लोग खरीद लेते हैं. तो जब 1 के साथ 1 फ्री मिलता है तो हमारी सेल होने के चांसेस ज़्यादा है. तो एक्सपोर्ट्स जो है वो चीपर हो जाते हैं. तो हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रिलीव हो सकती है. CAD करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है अगर रूपी यहाँ पर डेप्रिशिएट होता है. तो इसलिए चाइना अपनी करेंसी को बार बार डीवैल्यू करता था, डेप्रिशिएट नहीं, डीवैल्यू, क्योंकि जब आप खुद करते हो तो वो डीवैल्यूएशन माना जाता है. इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. अब क्रूड ऑयल का प्राइसेस इतने महंगे हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं, तो जैसे सपोज मैं जर्मन स्टील को लेकर आता हूँ और जर्मन स्टील का सपोज प्राइस इंक्रीज हुआ है और उस जर्मन स्टील को मैं यूज़ करता हूँ फॉर इंडियन कार्स, तो आपको नहीं लगता जब स्टील का दाम, जर्मनी स्टील का दाम महंगा होगा और इंडियन कार्स में उसे मैं लगाऊंगा तो इंडियन कार का प्राइस भी बढ़ेगा, विच विल रिजल्ट इनटू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. इंपोर्टेड का मतलब आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बाहर से मंगवाया जिसका दाम इंडिया में आने की उसकी वजह से इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर दाम बढ़ गया, राइट. तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. सो आई गेस माई पॉइंट इज वेरी क्लियर हेयर कि ये रेपरकेशन या ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है फॉर फॉल इन द रूपी. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट जनरली रिजर्व बैंक डज हेयर इन when there is a very big fall in the rupee, we see they will sell dollars in the currency market. अब आपको हमें क्या करना है, हमें रूपी को स्टेबलाइज करना है. सो व्हाट दे आर गोइंग टू से, दे आर गोइंग टू सेल डॉलर इन द मार्केट. दे विल सेल डॉलर्स एंड दे विल बाय रूपी. व्हेन दे आर गोइंग टू सेल डॉलर एंड बाय रूपी, डिमांड किसकी बढ़ रही है, रूपी की डिमांड बढ़ रही है. और सप्लाई किसकी बढ़ रही है, डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है. करेंसी मार्केट में पहले हम डॉलर ज़्यादा खरीद रहे थे, रुपये को बेच रहे थे. अभी हम रुपये को खरीद रहे हैं और डॉलर को बेच रहे हैं. तो डॉलर की सप्लाई हम बढ़ा देंगे और रुपये की हम डिमांड बढ़ा देंगे, विच विल अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द रूपी. दिस इज जनरली डन बाय RBI or any other central bank in order to rebalance their currency.
बट दे जनरली डू टू अस एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास 700 बिलियन डॉलर हैं तो 700 बिलियन डॉलर को वो बेच देंगे, नहीं, वो बेचेंगे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लाने को। सपोज 25 मिलियन या 30 मिलियन या 50 मिलियन या 1 बिलियन डॉलर को बेच दिया। देन रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये दूसरा उनके पास एक आइडिया रहता है कि जैसे अगर मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा माल खरीदता हूँ, जैसे सपोज मैं रशिया के साथ में एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि अगर मैं रशिया से कभी भी कोई कमोडिटी खरीदूंगा, आई विल नॉट बी पेइंग इन रूबल, और इफ आई बाय प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान और इफ आई बाय प्रोडक्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई विल नॉट बी पेइंग इन रियाल, सॉरी आई विल नॉट बी पेइंग इन डॉलर, बल्कि आई विल बी पेइंग इन द देयर डोमेस्टिक करेंसी। तो रशिया को हम क्या कर रहे हैं, रूपी में पेमेंट कर रहे हैं। ईरान को हम किस में पेमेंट कर रहे हैं, रियाल में पेमेंट कर रहे हैं। हमने डॉलर को ही हटा दिया, हम डॉलर में पेमेंट नहीं कर रहे हैं। किसको, यूएस, सऊदी अरेबिया को, ईरान को। तो अब ये प्रॉब्लम है, आप पूछोगे कि सऊदी अरेबिया की अलग करेंसी है लेकिन तब भी वो डॉलर में ही पेमेंट क्यों लेता है? बिकॉज देयर इज अ एग्रीमेंट विच वॉज साइंड बिटवीन यूएसए एंड सऊदी अरेबिया दैट whatever the sale will be done of crude oil, it will be done in dollar itself. तो ये 1960 का एग्रीमेंट हो रखा है, राइट? सऊदी अरेबिया की करेंसी अपनी है लेकिन वो तब भी डॉलर में बेचते हैं क्योंकि 1960s का एग्रीमेंट है, क्योंकि डॉलर को उस समय पे ग्लोबलाइज करेंसी बनाने का एक प्लान बनाया गया था। एनीवे, आई होप माई पॉइंट इज वेरी क्लियर है। जनरली इस समय पे हमें क्या देखने को मिलता है, जब भी किसी करेंसी को डेप्रिशिएशन देखना पड़ता है, इट इज लाइकली टू एनहांस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। हमारा प्रोडक्ट फॉरेनर्स को सस्ता लगने लगता है, तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, विच इन टर्न इम्पैक्ट्स दी इकोनॉमी पॉजिटिवली। तो हमारी वो इकोनॉमी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है क्योंकि हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। The rupee is still more resilient than it was in some of the previous crises. जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 2008 में रूपी इतना ज़्यादा रेजिलियंट यानी कि इतना स्ट्रांग नहीं था जितना वो अब है। Though the rupee has depreciated against the US dollar, but it has appreciated against the major currencies जैसे जापानीज येन या फिर बाकी की कुछ एशियन इकोनॉमीज हैं, वहाँ पर रूपी अप्रिशिएट देखने को मिला है। देन रूपी डेप्रिसिएशन जब भी होता है, इट इज जनरली गुड फॉर द करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि वो एक्सपोर्ट हाई करवाता है, राइट? बट आपको ये समझना चाहिए कि कभी भी आरबीआई को एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट मूव नहीं लेना चाहिए दैट दे गो फॉर रिग्रेसिव सेलिंग ऑफ डॉलर्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू हर्ट द फॉरेन रिजर्व्स ओनली, राइट? अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि यूपीएससी इसको लेकर क्वेश्चन कैसे बना सकता है। ये 2019 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और द आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द रूपी। ऐसा कौन सा मेजर है जो आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं लेगी रूपी को स्टॉप करने के लिए फॉर द स्लाइड, राइट? अगर मुझे इंडियन रूपी को रोकना है तो मैं क्या स्टेप नहीं लूंगा, ये पूछा। तो कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। अगर मैं नॉन एसेंशियल गुड्स को और एक्सपोर्ट्स को नॉन एसेंशियल गुड्स को रोक देता हूं और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता हूं तो रूपी का स्लाइड बंद हो जाएगा। आंसर इज यस। चांसेस हैं, अगर मैं आईफोन मंगवाना बंद कर दूं तो चांसेस हैं कि रूपी स्लाइड कम होगा। एनकरेजिंग इंडियन बोरोस टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। तो यस, मैं अपनी ही करेंसी में बोरो कर रहा हूँ। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, तो इससे डॉलर का इन्फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करूंगा तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों के हाथ में और पैसा दे रहा हूँ तो लोग और बाय करेंगे, तो ये स्टेप मैं नहीं लूंगा, विच विल नॉट बी टेकन, राइट? नॉट द मोस्ट लाइकली नहीं लेंगे, अब ये नहीं लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2020 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 21 का। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, अगर कोई भी करेंसी डिवैल्यू होती है, डिवैल्यू का मतलब है आप खुद ही हटा रहे हो, खुद ही वैल्यू को घटा रहे हो,
It improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign market. This statement is absolutely correct because your product looks cheaper to the foreigners. It increases the foreign value of domestic currency. क्या हमारी वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है? नो, इट डिक्रीजेस. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. एंड इट इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस. बट इज इट नेसेसरली, क्या सच में ऐसा होगा? नहीं. और ये अगर सही भी होता तो भी ऑप्शन नहीं है. 1 हमें अभी तक पता है कि ठीक है. क्या 1 and 3 कहीं दे रखा है? आंसर इज नो. 1 and 3 कहीं पर भी नहीं दे रखा. तो आंसर इज A only. I hope my point is very clear. So in this manner only we are going to teach you the burning issues for UPSC, which will not only help you in your prelims examination but it will also help you in preparing for your mains examination. We are also going to continue this series in such a manner that all the burning issues are completed in a very integrated manner. Thank you, and please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon, and please mention in the comment section that how did you find this video. Thank you.